So, yesterday we just understood what an auxiliary is. Auxiliaries are just verbs only. But why are they called auxiliaries? Because they are those verbs which help the main verb. Which help the main verb. So that is why we call them auxiliaries. Right? Now, today we will focus on modal auxiliaries. Yesterday we just focused on the primary auxiliaries. Is, am, are, was, were, has, have, had, will be, shall be, has been, have been, had been. These are all primary auxiliaries. Whereas can, could, may, might, shall, should, must, will, would, used to, need to, dare, and ought to are all modal auxiliaries. As we learned earlier, that modal auxiliaries express attitudes like permission, possibility, etc. Right? हमने ये definition पढ़ी थी that modal auxiliaries express attitudes like permission, possibility, etc. So today our focus will be on modal auxiliaries. We will just learn which modal auxiliary is expressing which attitude. And this is what we need to remember. मॉडल्स में कंफ्यूजन भी हो सकती है सपोज एक सेंटेंस है उसमें कई मॉडल्स फिट हो सकती हैं बट विच वन इज द बेस्ट पॉसिबल is a little challenge and moreover आप जो आंसर लिख रहे हो what is the logic behind if that logic is correct and you know the logic then you are going to get this modals always correct ठीक है so हमको आज सिर्फ ये याद रखना है कि जो भी हम modal auxiliaries आज पढ़ेंगे उनका क्या वो क्या attitude exhibit करती हैं before we take up the modal auxiliaries let's quickly cross check the answers of A part. So Harry. Now Harry के साथ it's a third person singular and moreover यहाँ पे gone है the third form of verb. Present perfect. Question options are has and have. Obviously has ही लगेगा क्योंकि have तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता ही नहीं है. So कहीं ना कहीं मैंने tenses के according ही सोचा when the option is written. Right? Though has is modal, but मैंने कहीं ना कहीं tense के according सोचा ना. So tenses somewhere are connected. You need to have the knowledge of tenses. You need to remember. Okay. Now next we dash going to a party. अब we के साथ was तो कभी नहीं आएगा, है ना? वर होता तो अलग बात थी. अब यहाँ दोनों ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन इज आर. Similarly, I am finished तो नहीं हो सकता. I have finished. So कहीं ना कहीं subject verb agreement tenses आप कहीं ना कहीं ये पढ़ रहे हो. इसकी knowledge आपको use आ रही है while doing modals. Right? Yes, Tarvi, your answer is correct. We dashed to visit that place in the morning. We had to visit. Now had to यहाँ पे necessity. ये had यहाँ पे necessity show कर रहा है. Action की necessity. Right? So this is modal auxiliary. Now, do you want some coffee? Then I not like you. अब यहाँ पे ऑप्शन डू है और एम है. अगर हम एम लिखे तो भी सेंटेंस गलत तो नहीं लग रहा. क्या लग रहा है? आई एम नॉट लाइक यू. मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं. यस और नो. और अगर मैं यहाँ लगा दूं आई डू नॉट लाइक यू. राइट? तो इसमें अब हम कैसे चूज करें कि एम ठीक है या डू. तो ध्यान से सुनो. यहाँ जब मैं कहती हूँ आई एम नॉट लाइक यू तो नॉट लाइक यू यहाँ लाइक कोई मेन वर्ब नहीं है. एम ही मेन वर्ब है. राइट? तो वो मॉडल ऑक्सिलरी की तो बात ही नहीं हुई ना फिर एम में. सो इसलिए यहाँ बेस्ट आंसर क्या है? डू. क्योंकि जब हम डू लगाएंगे तो लाइक इज द मेन एक्शन. लाइक इज द मेन एक्शन. सो यहाँ पे डू आएगा. वेरी नाइस. Most of you are, please don't distract. Okay. I dash want you to pass your exam. अब यहाँ पे भी डू आएगा और यहाँ इसकी सेंस समझो कि यहाँ डू का मतलब क्या है. यू आर इंसिस्टिंग डू विजिट माई हाउस. देखो एक हो गया सिंपल विजिट माई हाउस टुमारो. लेकिन मैंने कहा डू विजिट माई हाउस टुमारो. दैट मीन्स आई एम जस्ट मेकिंग विद अ स्ट्रॉन्ग इंटेंशन. आई एम इंटेंसिफाई माई रिक्वेस्ट. ठीक है. सो डू इज ऑल्सो यूज्ड इन दिस. देखो बिना डू के भी सेंटेंस बन रहा है. आई वॉन्ट यू टू पास योर एग्जाम. लेकिन अगर डू लगा दिया तो आपने उस एक्शन को इंटेंसिफाई कर दिया. राइट? आई डू वॉन्ट यू टू पास योर
एग्जाम. He speaks faster than she के साथ does आएगा. Does. You dash. You are to see. This house is made up of wood. I hope you all have done these answers. I take a pause of 30 seconds. Good. Some of you are writing the answers. Okay, well. So, believing that you all, it's easy exercise, you all must have done it. Let's close this. Okay. Now, coming on to first modal auxiliary, that is can. अब पहली मोडाल ऑक्सिलरी हम जो करने वाले हैं वो क्या है CAN कैन और छोटे होते से आप कैन का यूज करते आ रहे हो आई कैन लर्न टेबल्स आई कैन रन फास्ट आई कैन गो कैन आई टेक योर पेन सो ये कैन का यूज आप शुरू से करते आ रहे हो सो अब हम इसको नाम बता रहे हैं कि ये जो कैन है यहाँ पे दिस इज द मोडाल ऑक्सिलरी क्यों है बिकॉज कैन इज हेल्पिंग द मेन एक्शन this can verb is helping the main verb. When I say Ram can bake a cake, so baking is the main action. Can is helping the main action. So it is an auxiliary. But this auxiliary can is showing some attitude and that attitude which it shows is ability. ये क्या show कर रहा है? Ability of a person to do the action. So Ram is able to bake a cake. Actually, you want to show ability when you used can. ठीक है? Right? So, can shows ability you have to remember. For example, next example में भी देखो, can you break this door? Again, पूछना क्या चाह रहे? That means, are you able to break this door? So again, this can is modal auxiliary because it is helping the main verb to complete its sense. Moreover, the attitude it shows us ability. Can is not only used for ability, it is also used for permission. जैसे अभी मैंने आपसे बोला request and can I take? That means if I am requesting for your pen, can I take your pen? So that means I am asking for permission to take your pen, right? So can is also used in such sentences where you need to take permission. Okay. नाउ अब ये कैन क्या होता है बच्चे परमिशन में ये इनफॉर्मल परमिशन है इनफॉर्मल जैसे लेटर्स होती हैं दैट मींस लेटर विच आर कैजुअल विच आर रिटन टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इसी तरह जो हमारे बिल्कुल क्लोज है उनके साथ हम या हमारे साथ के हैं सेम टू सेम एज लेवल के हैं तब हम कैन बोलते हैं अगर यही पेन आपने प्रिंसिपल मैम से मांगना है या मुझसे मांगना है तो आप क्या कहोगे मैम मे आई टेक योर पेन तब हम कैन नहीं यूज करेंगे तो ये छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं जबकि अगर मैं आपको सेंटेंस दे दूं डैश आई टेक योर पेन अब आप यहाँ चाहे मे लगा दो चाहे कैन लगा दो आंसर गलत नहीं होगा क्यों क्योंकि भाई मे आई टेक अ पेन कैन आई टेक अ पेन दोनों सही मॉडल्स है लेकिन अगर ब्रैकेट में मैं लिख दूं इनफॉर्मल परमिशन तब अगर आप मे लगा दोगे तो गलत हो जाएगा आपका आंसर तो इसलिए मैं आपको कह रही हूं कि आपने जो भी मॉडल ऑक्सिलरी पढ़नी है उसमें उसका यूजेज उसकी एटीट्यूड देखना है वो क्या क्या बता रहा है क्या क्या एक्सप्लेन करता है एटीट्यूड ठीक है सो आपको याद क्या रखना है कैन बी यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी एंड परमिशन ये बात मन में दिमाग में अच्छे से डाल देनी है कि कैन क्या एक्सप्रेस करता है एबिलिटी एंड परमिशन सो कैन इज क्लियर आई बिलीव कमिंग ऑन टू द सेकंड कुड पहला तो कुड इज द पास्ट टेंस ऑफ कैन पास्ट सो ये याद रखना है could can also be used as a past tense of can now in indirect speech अगर याद हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच अच्छा अभी आपने तो किया नहीं होगा लेकिन दिस इज वेरी कॉमन सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच मींस वो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वाली जैसे फर्स्ट सेंटेंस देखिए रॉब सेड अगर ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होता तो ये यहाँ नहीं ये होता आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम राइट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होता तो क्या होता ये I can solve the problem. Rob said, I can solve the problem. लेकिन इसी को जब indirect speech में बदलना है ये can किस में बदल जाता है could में Rob said that he could solve the problem. So actually आपने again could से भी क्या show की ability. But when you were talking in the sentences indirect speech. ठीक है दूसरा again you can show ability in the past. That means when I was young I could swim very well. I was a good swimmer. I could swim excellently. So ये मेरी पुरानी बात है आदत जो एबिलिटी तब कर सकता था अब नहीं I could cycle very fast when I was in college but now I don't. So this is जब हम
कंपैरिजन करें और समथिंग विच वी आई वांट टू टेल कि पहले पास्ट में मैं ये कर सकता था. सो टू शो एबिलिटी इन द पास्ट वी यूज कुड. और कहा कुड इज ऑल्सो यूज फॉर वीक पॉसिबिलिटी. वीक पॉसिबिलिटी मतलब, पॉसिबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग अकरिंग ऑफ एन एक्शन, किसी काम के होने की संभावना. ठीक है. सो कुड कई कई बार हम टू शो वीक, कि जब हमारी पॉसिबिलिटी वीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं, वीक पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए भी कुड यूज होता है. जैसे यहां अगर हमने सेंटेंस में लिखा शी कुड लीव ऑन फ्राइडे, सो वी आर जस्ट थिंकिंग कि शायद वो जाएगी. और वो जो शायद है बहुत ही कमजोर वाला है कि 99% शायद ना ही जाए, 1% वाली वेरी वीक पॉसिबिलिटी. ठीक है. अगेन फॉर रिक्वेस्ट एज वेल. अब आप आगे जाके एक मोडाल पढ़ोगे वुड. ठीक है. और ये आप बहुत यूज करते हो. वुड यू लाइक टू हैव कॉफी, वुड यू प्लीज ब्रिंग मी सम वाटर, वुड यू दिस. सो जब भी आप रिक्वेस्ट करते हो, वुड यू प्लीज गेट मी सम सॉल्ट, है ना, तो आप रिक्वेस्ट वुड से करते हो. 90% तो आप वुड यूज करते हो. लेकिन कुड इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पोलाइट रिक्वेस्ट. इनफैक्ट यू कुड से वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट और टू अ पर्सन हु इज लाइक a stranger to us or at a very high rank to us. would हम अपने लोगों के लिए एंड फॉर्मल के लिए यूज कर रहे हैं. कुड और ज्यादा थोड़ा सा. सो कुड भी रिक्वेस्ट के लिए यूज हो सकता है, वुड तो होता ही है. ठीक है. सो अब हमने कैन का पढ़ा, एबिलिटी एंड परमिशन. कुड का पढ़ा, एबिलिटी इन द इनडायरेक्ट स्पीच एंड इन द पास्ट, वीक पॉसिबिलिटी एंड रिक्वेस्ट. सो ये आपने याद रखना है. राइट right? उसके बाद अब हम पढ़ रहे हैं मे. अगेन मे भी आप, there is a question, let me take from Sahib Preet. Yes, Sahib Preet. And Atishay, what's your question? Atishay. मैम हाँ मैम ये जी. वाला समझा दो मैम, फूड क्या वाला. अभी तो मेरे को फूड समझाया, क्या वाला नहीं ये. समझ आया? क्या नहीं समझ आया? आतिशी क्या नहीं समझ आया बच्चे? मैम वो मेरा नेटवर्क थोड़ा स्लो था. ओके फाइन. So could is beta, just you need to see that could is used for ability in the indirect speech, ability in the past, weak possibility and request. Indirect speech मतलब there are two ways of speaking. जब inverted commas वाले sentences होता है that is direct speech. जैसे इसका direct speech क्या होगा? Rob said, comma inverted comma start, I can solve the problem. जब इसको मैंने ये जो है इनडायरेक्ट स्पीच है, दैट लगा हुआ है, कोई इन्वर्टेड कॉमास नहीं है. सो रॉब सेड दैट, ही कैन की जगह क्या हो जाता है? कुड. सो अगेन शो तो एबिलिटी ही कर रहा है इनडायरेक्ट स्पीच में. जब हम पास्ट एबिलिटी की बात करते हैं तो भी कुड लगाते हैं. जैसे आई कुड स्विम व्हेन आई वाज 5, शी कुड लीव ऑन फ्राइडे. यहाँ जो कुड लगा हुआ है दिस इज शोइंग वीक पॉसिबिलिटी. जैसे जब हम कहते हैं वेरी वीक परसेंट ऑफ चांस, जैसे 2-3% चांस है, ज्यादा नहीं है, बट यस मे बी. वो चल अब देखो मे बी भी लग सकता है शायद. सो यू हैव टू रिमेंबर कौन कौन सी वो जो है पॉसिबिलिटी शो करती है. मे भी जो है वो पॉसिबिलिटी ही शो करता है. कुड जैसे मैंने अभी बताया, वुड इज ऑल्सो यूज फॉर रिक्वेस्ट. 90% ऑफ वुड यूज करते हैं, लेकिन कुड इज ऑल्सो यूज फॉर making request. So this is what Atisha you need to remember only, right? बाकी modals is nothing a difficult topic. When you do the sentences आपको लगेगा इसमें तो कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये तो हमको पहले से ही पता है यहाँ क्या आना चाहिए, क्योंकि you have been making sentences using them right from the beginning when you have started learning English. जैसे may I borrow your copy of this book? So actually what you're taking permission, ma'am may I come in? may तो आप शुरू से यूज करते हो, तो आपको पता है that may is used for permission, may is used for asking permission, right? Then may you always prosper. अब आपको ये भी आता है, जैसे आप किसी को विश करते हो तो आप कहते हो ना may God bless you, may you stay happy, may you get full marks. So when you are making a wish or giving a blessing to somebody, you also use may. So may किसके लिए यूज हुआ? फॉर द परमिशन, फॉर द विश. एंड अभी मैंने आपको जब कुड कराया था तो मैंने बताया था पॉसिबिलिटी के लिए मे भी यूज होता है. कैसे? इट मे रेन टुडे, शायद आज वर्षा होगी. लेकिन जब हम मे लगाते हैं तो जैसे कुड की तो बहुत वीक पॉसिबिलिटी थी ना, तो मे की वीक पॉसिबिलिटी नहीं है, नॉर्मल पॉसिबिलिटी है. ठीक है, लाइक 60-70% वाली. जब हम कहते हैं ना मे पॉसिबिलिटी, इट मे रेन टुडे, दैट मींस वी आर लुकिंग एट द क्लाउड्स, वी आर ऑब्जर्व मेकिंग दिस गेस कि होगी, तो 70% श्योर है कि होगी.
राइट लेकिन कुड जो है पॉसिबिलिटी वो वीक पॉसिबिलिटी है. सो ये कंपैरिजन अपने दिमाग में आपको याद रखना है. ठीक है. सो मे हमने कहाँ कहाँ यूज किया? परमिशन, विश एंड पॉसिबिलिटी. अब माइट कहाँ होता है? माइट इज अगेन सेकेंड फॉर्म ऑफ मे, तो पास्ट टेंस की तरह यूज हो सकता है माइट. दूसरा, माइट शोज वीक पॉसिबिलिटी. जैसे मे तो 70% पॉजिटिव ना, लेकिन ये कुड की तरह हो गया. माइट, इट माइट, शी माइट कम टुडे, she might come at my house. That means you're not very sure. 10% chances है, 5% chances है कि वो आएगी. Right? Less possibility है. Right? We might leave town next week. हो सकता है हम चले जाए. Again, very weak possibility is there. Right? उदय, क्या चल रहा है बेटा? चार्वी, डोंट टेल एनीबडी वो क्या करना चाहिए बेटा. कोई बात नहीं. प्रॉस्पर माने आप, प्रॉस्पर का मीनिंग होता है खुश रहना. राइट? हो सकता है इस टाइम थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लमेटिक होता है, सो डोंट वरी, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड. दोबारा पूछ लेना. राइट? सो माइट इज यूज्ड फॉर वीक पॉसिबिलिटी. और इसमें कुछ समझाने वाली बात है ही नहीं. यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस. अगर बाय चांस किसी का नेटवर्क ब्रेक हो रहा है और उसको नहीं समझ आ रहा है तो जस्ट गो थ्रू दिस. आपको मैं बार बार बता रही हूँ दैट जस्ट रिमेंबर द मोडाल ऑक्सिलरी एंड नोट डाउन कि उसके पर्पस वो कहाँ कहाँ यूज होता है. अपना एक कॉन्सेप्ट मैप बना के रखो कि मैं हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं. परमिशन के लिए, विश के लिए और पॉसिबिलिटी. सो इस तरह आपने याद रखना अपना दैट में हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं. इसी तरह माइट कहाँ कहाँ यूज करते हैं. आपको मेरी बात अगर नहीं भी समझ आई है तो डोंट वरी अबाउट इट. यू कैन जस्ट गो थ्रू yourself from the book and in the next class you can ask your doubts. ठीक है? So don't worry about that. चलो, might is again we were doing might used for weak possibility and it also expresses a degree of dissatisfaction or reproach. Reproach का meaning होता है showing dissatisfaction with one's action. जब हम किसी कोई हमारा काम कर रहा है सपोज, या किसी ने कोई काम किया, उस काम से हम जब सेटिस्फाइड नहीं होते हैं या उसके करने के तरीके से हम सेटिस्फाइड नहीं होते और हम कोई ऐसा सेंटेंस बोलते हैं जहां हम वो डिससेटिस्फेक्शन शो करना चाहते हैं, तो हम माइट यूज कर सकते हैं. जैसे यू माइट पे अ लिटिल मोर अटेंशन ड्यूरिंग द क्लास. दैट मीन्स जितनी आपने दी उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं और देनी चाहिए थी आपको. सो दिस इज काइंड ऑफ टू एक्सप्रेस डिससेटिस्फेक्शन. अब शुड तो सबको ही पता है. शुड इज यूज फॉर सजेशन. सजेशन चाहे देना हो चाहे मांगना हो, whether you are asking for suggestion or you are giving a suggestion. एडवाइस भी तो सजेशन ही होता है ना, सलाह देना. ठीक है? so whether you are asking a suggestion or giving an advice, you can use should. जैसे you should talk to me before you do anything. या you should consult doctor when you are ill. You should eat healthy diet. So what we are doing, we are actually suggesting somebody something. और अगर मुझे कुछ पूछना है तो मैं should I go to the next topic? Have you all understood it? तो मैंने क्या कहा, should I go to the next topic? That means I'm asking for your suggestion कि आगे चले या नहीं. Right? So this is how हम should is used for asking a suggestion or advice. अब shall क्या होता है? shall हो या will हो, दोनों देखो. सबको पता है shall और will कहाँ यूज होता है? सिंपल फ्यूचर में. होता है कि नहीं? सिंपल फ्यूचर का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले shall या will आता है. राइट? सो सिंपल फ्यूचर में हम shall और will यूज करते हैं. जब हमने टेंस पढ़ा था सिंपल फ्यूचर तो हमने पढ़ा था आई यू वी दे प्लूरल के साथ shall लगाते हैं, ही शी इट सिंगुलर के साथ will लगाते हैं. और मैंने कहीं आपको ये भी बताया था will हम आई यू दे प्लूरल के साथ भी लगा देते हैं तो गलत नहीं है. अब अगर हम इसको इंटरचेंज करते हैं तो मोडाल्स का मतलब थोड़ा सा चेंज होता है. यहाँ देखिए क्या, shall indicates a promise. अभी इसको आप promise की तरह याद कर लो या ये simple future tense देख लो, एक ही बात है. देखो, you shall get a new laptop on your birthday. That means sense क्या आ रही है कि किसी ने promise किया कि तुम्हें laptop मिलेगा.
है ना। बट अगर हम इसको ग्रामेटिकली टेंसेस के अकॉर्डिंग देखें तो देखो, शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सिंपल फ्यूचर ही तो है, तुम्हें लैपटॉप मिलेगा, यस और नो। सो इसका सेंस क्या आ रही है, दैट शैल इज यूज्ड एज अ प्रॉमिस। शैल कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ थ्रेट, धमकाने के लिए। याद है मैंने आपको बोला था डिटर्मिनेशन एंड थ्रेट, जब टेंसेस कराए थे मैंने बोला था आप जब ऑपोजिट ही शी इट के साथ अगर शैल लगा देते हो तो या तो धमकाने का पर्पस हो तब लगाते हैं, धमकी देना हो किसी को, या फिर अ स्ट्रॉन्ग लाइक। सो यहाँ देखो ही के साथ शेल लगाया है, टेंसेस में तो हम ही के साथ शेल कभी भी नहीं लगाते ना, लेकिन यहाँ ही के साथ शेल लगाया। और देखो आगे सेंटेंस क्या है, ही शैल नॉट रिमेन द कैप्टन एनी मोर। सो दैट मीन्स यू आर गिविंग अ थ्रेट, थ्रेट मतलब धमकाना, ठीक है। अब विल में देखें, will is used in the third person, again simple future में होता है, like, right। आपने अभी पढ़ा विल को, अभी मैं आगे नेक्स्ट पेज पे देखो, विल में जब फर्स्ट पर्सन के साथ, विल जब हम फर्स्ट पर्सन दैट मीन्स आई के साथ यूज करते हैं तो ये कई तरह के मीनिंग्स एक्सप्रेस करता है। जब आई को विल के साथ यूज करते हैं, आई विल को सॉरी आई के साथ यूज करते हैं तो ये कई तरह के मीनिंग एक्सप्रेस करता है। ये विलिंगनेस शो करता है, ये डिटर्मिनेशन शो करता है, ये प्रॉमिस शो करता है, हैबिट शो करता है, इंटेंशन शो करता है, थ्रेट शो करता है। सो सिर्फ सेंटेंसेस का देखो, I will do the work, that means I'm showing willingness, willingness मतलब readiness to do something। I will achieve my goal, that means I'm determined to achieve, मैंने पक्का इरादा कर लिया कि मैं तो ये करूंगा ही करूंगा। I shall करती तो नॉर्मल बात है। We will help you, प्रॉमिस कर रहे हैं, राइट। अब हम जब इसके साथ आए और फर्स्ट पर्सन, आए और भी फर्स्ट पर्सन होते हैं ना, जब फर्स्ट पर्सन के साथ विल यूज होता है तो इट एक्सप्रेसेस विलिंगनेस, डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, हैबिट, इंटेंशन और थ्रेट। ये याद रखना है, देयर कुड बी डिफरेंट सेंटेंसेस, राइट। इन सब चीजों में भी यूज हो सकता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये जब आप करोगे, फिलअप्स करोगे, यू विल फाइंड इट वेरी इजी। और वुड अभी मैंने आपको पहले ही बताया दैट वुड क्या है, इट इज यूज फॉर पोलाइट क्वेश्चन और पोलाइट रिक्वेस्ट, राइट। रिक्वेस्ट, ऑफर्स एंड क्वेश्चंस। जैसे रिक्वेस्ट, वुड यू प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये हो गई पोलाइट रिक्वेस्ट। ऑफर क्या हो गया, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, ये ऑफर कर रहे हैं ना हम किसी को, गेस्ट आया, वुड यू लाइक टू हैव जूस, सो दिस इज ऑफर। क्वेश्चन, वुड यू गो आउट विद मी, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। पोलाइट क्वेश्चन, पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट ऑफर। सो दिस इज व्हाट यू ऑल हैव टू रिमेंबर, राइट। दैट्स ऑल अबाउट इट। आई वॉन्ट यू टू ट्राई डूइंग दिस। जैसे यहाँ देखो ब्रैकेट में आपको ये भी दिया हुआ है, हिंट दिया हुआ है कि ड्यूटी की सेंस आ रही है तो आप क्या लगाओगे, पोलाइट रिक्वेस्ट है तो आप कौन सा मोडाल यूज करोगे। जस्ट look at the words in the bracket and fill your answers yourself. We'll be discussing it tomorrow. That's all for today, right? So now you can ask your